for this Inspiro program today. So the guest we have today, the speaker, his name is Mr. Raju Bhutekar, sir. Sir has done his engineering BE from ENTC from Sinhagad College itself. He is a professor and HOD in Sri Dhruva Academy. He guides many students in their career path as well as in spirituality. He has given many seminars in various colleges like MIT, Sinhagad, Jain College, various engineering as well as high school colleges also. He gives a guided program for career guidance and mentoring. He's a very good mentor, and personally in his life he likes to give the message of Bhagavad Gita, and at the same time give training to students for their personal career, and also he helps students to come out of bad habits and self destructive habits. So I thank Raju sir for coming for today's session, and I would like to ask sir to start with our today's first session, that is discover the game of life. Thank you, sir. So, thank you very much, Amit sir. So I will start today's session. Today's session is very amazing and interesting one. The discover the game of life. So I would like to welcome each one of you for this. So see, along with the start of our today's session, I would like to ask the first question of the session: what is everyone searching for? ऐसा कौन सा चीज है जो क्या कर रहे हैं, सब लोग सर्च कर रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, वो चीज को हमें जानना है. तो देखिए, हमारा एवरीबडी हैज सम डिजायर टू हैव गुड एडमिशन इन गुड कॉलेज, as well as they want to have good bungalow, the good wife, good husband. Also they want to have big bank balance and all. ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि हमारे पास हो. बंगलो होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज एम्यूनिटीज हमें चाहिए, बट वो एक चीज के लिए चाहिए हमें. तो वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए हम लोग वी आर सर्चिंग फॉर इट, सो लाइक स्ट्राइविंग फॉर इट? वी कैन एनीवन टेल मी? You can unmute yourself and you can tell me the answer, or you can type in the chat also. Yes, can anyone tell me which is that one thing which we are looking for? कौन सी एक चीज है जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं? ये सारी चीजें जो चाहते हैं हम लोग, वो एक चीज के लिए. यस, someone is saying satisfaction. Okay, you are almost close. Satisfaction is also the one of the thing which we are looking for, but you are almost close to the answer. Okay, we'll go to the answer. See, what is the answer? It is happiness. What we are looking for? Happiness. सब लोग हम क्या ढूंढ रहे? खुशी चाहते जिंदगी में, हैप्पीनेस चाहते. तो ये जो हमारा सर्च फॉर हैप्पीनेस है, so that everyone is looking for happiness. So let's go ahead. So different people look happiness or search happiness in the different aspects of life. So we can see that everybody is try to be happy in various things, various activities. जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है, तो he wanted to play with balloon, है ना? तो he finds happiness in playing with balloon. And another like little bit, once he grows little bit, that time he want to play with a tricycle, bicycle and all. So तो ऐसे आगे जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा, तो जो हैप्पीनेस का जो सर्च है, जो थर्स्ट है हैप्पीनेस का, वो वैसे ही रहेगा. बट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस विल बी चेंजिंग. जैसे जैसे एज ग्रो होगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट बदलता जाएगा, वैसे ऑब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस में बी वेरिंग, बट द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, थर्स्ट फॉर हैप्पीनेस विल रिमेन. सो दैट हैप्पीनेस एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर. तो और थोड़ा बड़ा होने के बाद यू वांट टू प्ले football, cricket and volleyball and many games. In that you want to find happiness. Then और थोड़ा बड़ा होने के बाद में then girlfriend, boyfriend and all those things, they want to search happiness. Then थोड़े दिनों के बाद लगी, जैसे ही हम लोग और थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, that time sometimes somebody becomes businessman, then he is interested in earning money, earning much more profits. So वो इंटरेस्ट बदल गया. तो once he get more and more profit, he becomes more happy. And जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड एज में जैसे एंटर करते हैं, so that time ओल्ड एज में एंटर करने के बाद में people get happiness through playing with the grandchildren and being with them, like to also like keeping company of the young people and all. So by that they become happy.
ये जो अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ है उसमें एवरीबडी सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस एंड बाय वेरियस मीन्स दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। तो अलग अलग तरीके से वो खुश होने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर देखेंगे जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके हम लोग अपनाते हैं जिससे हम खुश होने का ट्राई करते हैं। तो जैसे कि सम पीपल ट्राई वेरियस फैशंस टू बिकम हैप्पी, है ना। सम पीपल ट्राई डेयर डेविल एक्ट्स, थ्रिलर करना चाहते, कुछ थ्रिलिंग करना चाहते, जैसे स्काई डाइविंग। you might be knowing, you might be heard about this skydiving. So sometimes people dive Hello. from, yes, yes, No, sir, you can continue. okay. So skydiving, but sometimes skydiving becomes skydying because like once, like many time it happens that sometimes parachute doesn't open. So that time they fall from a uh, big height and they die out of this thrilling activity or daredevil acts. So, but at the risk of their life, उनके जो जिंदगी का रिस्क, जिंदगी को दाव पे लगाने के बाद भी वो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जिंदगी को दाव पे लगाने के बाद भी वो क्या करते हैं, वो हैप्पीनेस को खोजना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। वो चीज हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि यहाँ तक ये हैप्पीनेस का जो थर्स्ट है, ये जो हैप्पीनेस की भूख है, वो इतनी ज्यादा है कि लोग अपनी लाइफ भी, अपनी जिंदगी भी दाव पे लगाने को तैयार होते हैं। तो ये एक देखा हमने। फिर आगे अगर चलेंगे हम लोग तो देखिए इसके आगे, तो अलग अलग लोग, अभी कुछ लोग स्पोर्ट्स में हैप्पीनेस हैप्पीनेस उनको मिलता है, जैसे कि क्रिकेट है वगैरह, प्लेइंग में, देखने में। सम पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन इंटॉक्सिकेशन एंड पार्टीज। पर देखिए, अभी इफ यू स्मोक मोर व्हाट विल हैपन, इट विल कॉज लंग कैंसर, लंग डिसीजेस होंगे। अगर आप ड्रिंक मोर करते तो यू विल हैव लिवर सिरोसिस, एंड इफ यू हैव लाइक इलिसिट कनेक्शंस एंड अफेयर्स देन यू विल हैव एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एड्स वगैरह। तो ऐसे ये सारी चीजें होने के बावजूद पीपल वांट टू ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। लोगों को अलग अलग चीजें ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि वो हैप्पीनेस वो चाहते, बाय हुक और क्रुक दे वांट टू गेट हैप्पीनेस। दैट सर्च फॉर हैप्पीनेस इज कंटिन्यूइंग, स्टिल दे आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। देखिए, बट अभी हम देखते कि उसके अंदर हम लोग सोचते हैं कि हमारा सोचना क्या है कि हमें हैप्पीनेस किससे मिलेगा, कौन सी चीज से हमें खुशियां मिलेगी। So first thing, like our favorite activity is eating. Everyone likes to eat. So objects and eating object, eating items may be different, but everybody likes to eat, है ना। कि हम सबको खाना बहुत पसंद है, तो सब लोग ईटिंग करना चाहते हैं। तो उसमें से हम सोचते हैं कि क्या मुझे अच्छे अच्छे आइटम, डिलीशियस डिशेस खा के मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। फिर सम पीपल, तो अगर बहुत खा लिया हमने तो क्या करना चाहते हैं, हम बहुत पेट भर खाने के बाद सोना चाहते हैं। तो some people get happiness through sleeping a lot, they want to sleep a lot। उनको लगता है कि मैं सोता ही रहूं, सुबह मुझे उठाना नहीं चाहिए किसी को, बट फिर भी हमें जागना पड़ता है ना। हमें ऑफिस को जाना है, फिर उसके बाद में हमें बहुत सारे बाकी काम है, कॉलेज को जाना है, उसके लिए उठना पड़ता है। तो वो जो है सोना भी हम देखते कि उससे हैप्पीनेस मिलता है। नेक्स्ट इज मेटिंग, एवरीबडी वांट्स टू हैव गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ, like that relationship. So that is next thing। and another thing is everybody want to depend, there is a fear, है ना। हमें डर रहता तो हमें प्रोटेक्शन के लिए everybody wants security in life। सबको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स और इन टर्म्स ऑफ लाइक बॉडीली सिक्योरिटी एंड मेनी अदर्स। so we can see big people have bodyguards and all। तो सब लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, जीवन में सिक्योर लाइफ चाहिए, तो उसके लिए हम डिपेंड करते हैं। तो ये चार चीजें जो है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजों में हम लोग क्या कर रहे हैं? हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, खुशियां खोज रहे हैं। तो ये देखिए, अगर अगर हम देखेंगे चार चीजें जो है वो एनिमल्स भी करते हैं। तो एनिमल्स को भी क्या है? फ्रेंड्स है, they also have fun, they also have family, we can say। So animals also have eating, they also sleep, they also mate, and they also depend। तो ये चार चीजें तो एनिमल्स भी करते हैं। they also eat, they also sleep, they also mate, and they also depend। तो उन ये चार चीजें एनिमल्स में और हम में कॉमन है, ठीक है। तो जो हम करना चाहते हैं, जिससे हमें खुशियां मिलती, वो एनिमल्स को भी वो चार चीजों से खुशियां मिलती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये कॉमन है दोनों में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में।
तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर हमें और एनिमल्स में ऐसा कौन सा डिफरेंस है। तो हम भी वो चार चीजें कर रहे हैं, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग। एनिमल्स भी वही चार चीजें कर रहे हैं, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग। तो हम में और उनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द एनिमल्स? तो कैन एनीवन वुड लाइक टू टेल दैट व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल्स? कोई बोलना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा कौन सी एक चीज है जो हमें एनिमल से अलग करता है? यस, एनीवन? तो कोई बोलेगा कि सर हमें एनिमल्स के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर विद अस विद एनिमल्स? है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स रास्ते पे खाते हैं, हम लोग प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड अरेंजमेंट्स होती है। जो एनिमल्स है वो किधर रास्ते पे किधर भी सो जाते हैं। हम लोग अब प्रॉपर डेलो पिलो बेड्स है हमारे पास, वी हैव प्रॉपर बेडरूम, इन दैट वी स्लीप। अगेन एनिमल्स मेट ऑन द स्ट्रीट ओनली, वो स्ट्रीट पे चालू हो जाते हैं। हम लोग वी हैव बेटर फैसिलिटीज। अगेन वी हैव लाइक एनिमल्स डिपेंड जस्ट बाय बार्किंग, है ना, चिल्लाते हैं कि उनके पास दांत है, नाखून है, उसके ज्यादा अलावा कुछ है नहीं। बट हमारे पास डिफेंड करने के लिए मिसाइल्स है, गन्स है, मशीन गन्स है, क्या क्या है, बहुत सारे फैसिलिटीज है ना। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास डिफेंड करने के लिए है, सारे फैसिलिटीज देखते, सो बट मार्टिन लूथर किंग has said very important statement. He said we have guided missile but misguided people, misguided men. तो हमारे पास guided missile है but misguided men है. That's the society is also becoming misguided. तो ये जो चीजें है, चार चीजें तो अभी देखिए, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिपेंडिंग, तो हम जो है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एनिमल जैसे करते हैं चार चीजें, उससे सोफिस्टिकेटेड वे में हम ये चार चीजें करते हैं, बट पर्पज इज सेम। द हैप्पीनेस व्हिच एनिमल derive from all those four things, we are also deriving the same happiness. So अगर हम बोलेंगे ये चार चीजें हम थोड़े अच्छे तरीके से करते, तो हमें क्या कहना चाहिए? देखिए ये जो पिक्चर क्या बता रहा है, इसमें एनिमल्स को सूट बूट पहनाया गया है, कोट गिट। तो क्या हम सोफिस्टिकेटेड एनिमल है? क्या हम डिलक्स वर्जन एनिमल का है? क्योंकि हम भी चार चीजें ही कर रहे जो एनिमल्स कर रहे, तो क्या हम एनिमल का डिलक्स वर्जन है? दैट इज द क्वेश्चन। क्या हम सोफिस्टिकेटेड एनिमल है? तो ये हमें पूछना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए। तो देखिए, तो कोई बोलेगा कि एनिमल्स जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होते, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ह्यूमंस आर मोर इंटेलिजेंट, एनिमल्स आर नॉट इंटेलिजेंट। बट अगर हम देखेंगे कि एनिमल्स आर आल्सो इंटेलिजेंट, एनिमल आल्सो इंटेलिजेंट। जैसे कि आपको हनी बीज पता है, दे हैव, समबडी विल से दैट एनिमल्स डोंट हैव सोसाइटी, वी हैव सोशल ऑर्डर। बट हनी बीज जो है उनको भी क्या है, उनका भी सोशल ऑर्डर होता है, उनका भी सोसाइटी होता है। अगर हम देखेंगे तो उसमें एक क्वीन भी होती है, कुछ वर्कर बीज होती है, ठीक है, कुछ सोल्जर बीज होती है। तो उस तरीके से दे हैव आल्सो प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर सोसाइटी उनको भी है। तो दे आर आल्सो वेल ऑर्गेनाइज सोशलाइज एनिमल, हम देख सकते हैं कि। तो उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सारा अरेंजमेंट है यहाँ पे सोसाइटी के, तो एनिमल्स हमें उससे अलग, हम लोग एनिमल से सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं होता, ठीक है। एनिमल्स आल्सो हैव इंटेलिजेंस, दे आल्सो हैव सोसाइटी, दे आल्सो हैव फैमिली, दे आल्सो हैव फ्रेंड्स। हमें ह्यूमंस में तो देखते हैं हम लोग, वर्कर गोज ऑन स्ट्राइक, है ना, स्ट्राइक पे जाते हैं, सुसाइड करते हैं, दंगे फसाद होते हैं। बट जानवर, आपने एनिमल्स का कभी देखा नहीं होगा ना, दे नेवर गोज ऑन स्ट्राइक, वो कभी स्ट्राइक पे जाते नहीं है। अभी देखेंगे अगले हम लोग की, यहाँ पे वेरियस एनिमल्स यू आर एबल टू सी। तो क्या इनका स्पेशलिटी है? तो ईगल का स्पेशलिटी क्या है? दे हैव टेलीस्कोपिक आईज, उनको टेलीस्कोपिक आईज है उनके पास। तो हम जितने दूर का नहीं देख सकते, वो उतना अच्छे तरीके से बहुत ऊंचाई से नीचे की चीजें बहुत क्लियरली देख सकते। तो देखने के मामले में जो ईगल है वो ह्यूमन से सुपेरियर है। फिर अगर हम देखेंगे, अगर हम हॉर्स के साथ रेस लगाएंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, है ना। हॉर्स भागने में रेस, उसमें बहुत ज्यादा तेज है और इट इज वेरी एक्सपर्ट एनिमल, कैन से दैट। आल्सो डॉग है, हमने स्मेलिंग का जो सेंसेशन है डॉग का, इट इज वेरी पावरफुल। इवन पुलिस एंड आर्मी पीपल आल्सो यूज डॉग, है ना। तो वी कांट बीट डॉग्स इन स्मेलिंग सेंसेशन। फिर हाथी है, तो अगर कोई बोलेगा सर मैं बहुत खाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ,
मैं गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है और मैं कितने बहुत सारे गुलाब जामुन खा सकता हूँ, बट हमें पूछना पड़ेगा हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग एंड हाउ मेनी गुलाब जामुन आई कैन ईट, कितने गुलाब जामुन कब तक खा सकता हूँ। क्या हाथी के साथ हम कंपटीशन कर सकते हैं? देखिए बनाना खाने का, गुलाब जामुन खाने का कंपटीशन लगाए तो हाथी से हम कभी नहीं जीत सकते। तो वी कैन से दैट elephant is much more powerful and superior in eating than human being. फिर उसके बाद हमें पोलर बेयर पता है। तो आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फ्रेंड इन कॉलेज डेज, ही स्लेप्ट ऑन फ्राइडे एंड गॉट अप ऑन मंडे। तो 2 दिन तक कंटिन्यूअसली वो सोते रहा, 2 दिन 2 रात तक। एवरीबॉडी वाज अमेज्ड, हाउ कैन यू स्लीप सो लॉन्ग, इतने देर तक कैसे सो सकते हो। बट अगर हम वो जो देखेंगे तो पोलार बियर 6 महीने तक सोता है, 6 महीने तक वो कंटिन्यूअस सो सकता है। तो सोने में, स्लीपिंग में भी हम लोग वी कैन नेवर कम्पीट विथ पोलार बेयर, ठीक है ना। ऐसे कक्कू है, वी कैन नो दैट कक्कू सिंग्स वेरी स्वीटली, है ना। हमें पता है कक्कू जो है उसका वॉइस जो बहुत स्वीट है, तो हम लोग भी उसको इमिटेट नहीं कर सकते, कक्कू जैसा स्वीट वॉइस नहीं निकाल सकते। तो ह्यूमंस जो है, एनिमल्स ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग, ये जो 4 एक्टिविटीज है, इसमें एनिमल्स आर मच मोर सुपेरियर देन ह्यूमन बीइंग। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है, फिर स्टिल क्वेश्चन रिमेन्स, फिर भी क्वेश्चन वैसा का वैसा है हमारा, कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो क्या करता है हमें एनिमल से सुपेरियर बना देता है। तो वो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो somebody is typing that thinking, ठीक है। तो थिंकिंग मेक्स अस सुपेरियर। एनिमल आल्सो थिंक गाइस, एनिमल आल्सो थिंक। कैसे? देखिए अगर आपने देखा कि एक आपने पत्थर हाथ में लिया और सिर्फ ऐसा किया तो कुत्ता भाग जाता है, कि उसको पता है अभी पत्थर हाथ में लिया है, वो क्या कर लेगा, मुझे मारेगा, है ना। पत्थर। और आपने देखा कि कैट जो है, कैट आता है घर के अंदर और बिना किसी आवाज करके साइलेंटली जाके दूध पी के चला जाता है। तो मैंने आवाज किया तो कोई देख लेगा मुझे और कोई मुझे हकलने के लिए, मारने के लिए आ जाएगा। सो एनिमल आल्सो थिंक, दे आल्सो हैव रैशनल पावर, दे आल्सो कैन think logically, they also that than human beings in this aspect, eating, mating, sleeping and defending। तो ये हमें यहाँ पे देख रहे, ठीक है, यहाँ तक हमें पता चला। अभी तो अभी कोई बोलेगा सर ठीक है, ह्यूमन बींग्स एडवांस टेक्नोलॉजी, एनिमल्स के पास नहीं है, ह्यूमन बींग के पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। वी हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड गैजेट, जैसे कि आज का जो सेमिनार है सर, आप कहीं और हम कहीं और, आप हम घर बैठे बैठे सब सेमिनार अटेंड कर पा रहे। स्मार्टफोन, वी हैव रॉकेट्स एंड वी हैव सुपर कंप्यूटर्स एंड watches and everything, we have so many sophisticated gadgets। कोई ऐसा बोलेगा। तो अभी ये टेक्नोलॉजी तो है, सही है। तो अभी देखिए अगर हम देखेंगे कि ये सारी एडवांसमेंट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज एट आवर फिंगर टिप्स, सब कुछ हमारे हाथों में, सारे कंट्रोल्स हमारे हाथों में, घर बैठे बैठे वी कैन कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मॉडर्न डे ह्यूमंस आर, यू कैन सी दैट दे आर dissatisfied, so many dissatisfaction, there are so much anxiety, full of anxiety, कितने सारे टेंशन है, कितना सारा स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस। किसी को जॉब है इसलिए जॉब का टेंशन, किसी को जॉब नहीं है उसको जॉब नहीं है उसका टेंशन। तो एवरीबॉडी इज स्ट्रेस, एवरीबॉडी इज इन टेंशन, एंग्जाइटी, एवरीबॉडी इज डिप्रेस। एंड ये सब देख के सारी जो वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, ये सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इन सबका पर्पस क्या है, हैप्पीनेस। बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अब ऑल वी आर अनहैप्पी, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सो मच एडवांस टेक्नोलॉजी। ये सब होने के बावजूद भी हम लोग अनहैप्पी है ना। सो हाउ इट मेक्स अस सुपेरियर देन एनिमल। तो हम लोग खुशियां ढूंढना चाहते, खुशी होना चाहते, तो फिर देखिए अभी इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, मुझे बहुत बेटर फैसिलिटीज देगा, एमिनिटीज देगा। ये जो ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग है, ये 4 एक्टिविटीज को और अच्छे तरीके से करने के लिए मुझे हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, ये सब। बट जो इनर सेटिस्फैक्शन है, जो इनर जॉय है हार्ट का, वो मुझे इससे नहीं मिल पाता। वी मे हैव वेरी नाइस सोफिस्टिकेटेड बेड, बट अगर हमें नींद नहीं आती तो, हमें बेड हम पैसे से खरीद सकते बट नींद नहीं खरीद सकते, ठीक है नहीं। हमें बहुत बहुत अच्छे बहुत अट्रैक्टिव क्लोथ्स वी कैन वेयर, हम परचेस कर सकते हैं, बट हमें ब्यूटी हम परचेस नहीं कर सकते। वैसे तो
We can purchase gadgets and amenities and facilities, but we can't purchase happiness. We can't purchase satisfaction. तो ये हमें सोचने वाली बात है, तो ये हमने बहुत ही इसको we should give time to think about this, ठीक है ना? तो चलिए we'll go ahead. तो फिर अभी देखिए कि animals, they don't have suicides, they don't have riots, they don't have divorces, they don't take drugs, drug abuse and all. तो ये सारे they don't perform crimes. तो ये सारी चीजें एनिमल्स करते नहीं है. हम लोग इतना एडवांस होने के बावजूद, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग ये सारी चीजें करते हैं. ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट. सो अभी स्टिल क्वेश्चन रिमेन्स, फिर भी सवाल वही है कि ऐसी कौन सी चीज है जो ह्यूमंस को क्या करता है, हमें ह्यूमंस बीइंग को एनिमल से सुपेरियर बना देता है. ऐसी कौन सी चीज है, तो वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है ना? तो देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक है महाभारत का. आई विल रिसाइट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतात पशुभिर नरणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समान. So very beautiful shloka. So see meaning of this shloka. So activities of eating, sleeping, mating and defending are common in animals and human beings. जो अब तक हमने डिस्कस किया, तो क्या बता रहे कि ये जो 4 एक्टिविटीज है वो ह्यूमंस और एनिमल्स में तो कॉमन है. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग को हम लोग कब सुपेरियर कंसिडर कर सकते हैं एनिमल से, उसके लिए क्या क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, तो देखिए human beings, why they are superior? Because they can inquire about the higher dimension of science, dimensional science. So wisdom about God, his creation, his laws, secret of true inner fulfillment in life. Why am I suffering? How can I be happy? How can I get unlimited, unending, everlasting happiness? तो वो जो है हम लोग को क्या करेंगे, तो वो इंक्वायरी हम कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते. इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इसलिए अभी हम देखते हैं एनिमल्स भी इंक्वायरी कर सकते हैं, बट किस चीज के बारे में? बस 4 चीजों के बारे में दे कैन इंक्वायर अबाउट. एंड दे हैव ऑल इंटेलिजेंस. उनके पास जो इंटेलिजेंस है, उनका जो रैशनल थिंकिंग है, रैशनल पावर है, ऑल दैट दे कैन यूज जस्ट फॉर 4 थिंग्स, ओनली 4 थिंग्स. कौन से 4 चीजों के लिए? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग. इस 4 चीजों के लिए वो यूज कर सकते हैं. बाकी और किसी चीज के लिए उनका इंटेलिजेंस वगैरह वो यूज नहीं कर सकते. तो देखिए वी कैन इंक्वायर अबाउट सो मेनी हायर प्रिंसिपल्स. तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, फाइंडिंग ट्रू गाइड, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ. ये सारे जो क्वेश्चन है आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे सवाल हम पूछ सकते हैं और उन सारे सवालों के हम जवाब ढूंढना चाहते हैं. तो ये सारे सवालों के जवाब जो हमारा अभी कोर्स है मंत्रा ऑफ लाइफ, इस कोर्स के सारे सेशंस आपको कंप्लीट होने तक सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे. ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड to your great satisfaction, will provide you great happiness, way to the happiness. ठीक है, तो देखिए अगर मैंने आपको सवाल पूछा बच्चों कि आपको कितना हैप्पीनेस चाहिए, इतना, इतना, इतना या इतना, कितना हैप्पीनेस चाहिए आपको? कितना चाहिए? थोड़ा सा चाहिए, बहुत चाहिए या बहुत ज्यादा चाहिए? कौन बताएगा कितना चाहिए आपको हैप्पीनेस? कैन टाइप इन द चैट एज वेल एज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Okay, somebody is saying that we want maximum happiness, unlimited happiness, everlasting happiness, unending happiness. और मैंने आपको दूसरा सवाल पूछा कि आपको कितने दुख चाहिए? इतने, इतने, इतने कि इतने? कितने दुख चाहिए आपको? बहुत कम या बहुत ज्यादा या मीडियम? कितने दुख चाहिए आपको? यस, यस, मेनी आर टाइपिंग इन द चैट. 0, वी डोंट वांट एनी. हमने देखी कि हमें दुख चाहिए नहीं, हमें सफरिंग चाहिए नहीं अपने लाइफ में. 0 सफरिंग चाहिए. कितना चाहिए? 0 सफरिंग, 0. तो दैट इज द थिंग. तो वो जो अनलिमिटेड अनएंडिंग हैप्पीनेस को एक्सेस करने का जो सीक्रेट है, पासवर्ड है, जो नॉलेज इज पावर हम बोलते, तो वो नॉलेज आपको इस मंत्रा ऑफ लाइफ जो अपना कोर्स है उसके अंदर मिलने वाला है आपको. सो प्लीज बी विथ अस, कंटिन्यू इन दिस जर्नी एंड हैव पेशेंस एंड अटेंड ऑल द सेशंस very attentively, make notes of it, and if you have any queries at the end, we'll take queries also, we'll take questions also, and we'll go through our session. So I will just proceed ahead. All these questions will answer during the course of this course.
तो अभी देखिए हाउ टू मेक दिस राइट चॉइसेस इन लाइफ। तो अभी अभी हम बहुत प्रैक्टिकल चीज के बारे में बात करने वाले जो बच्चों आपको कॉलेज लाइफ में और आगे भी आपके लाइफ में आपको काम आएगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी प्रैक्टिकल थिंग इन आवर लाइफ नाउ, जो कि हमें देखिए कि डेमोनियक एंड डिवाइन क्वालिटीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखिए कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कि हमारे अंदर कुछ अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। वी हैव demon inside us as well as angel within us। तो हमें इट इज आवर चॉइस कि हमें किसको, एंजल को बाहर निकालना है कि डिमन को बाहर निकालना है। तो हमें राइट चॉइसेस करनी है। तो ये जो चीजें हैं ये हम यहाँ पे देखने वाले कि डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनियक क्वालिटीज। हाउ व्हिच आर द डिवाइन क्वालिटीज, जैसे कि हम देखते हैं कि पेशेंस, ह्यूमिलिटी, हम देखते हैं कि लव, फॉरगिवनेस, ये जो सारे दीज आर डिवाइन क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, है ना। और बैड क्वालिटीज कौन से, एरोगेंस, एंगर, प्राइड, ये जो सारे चीजें है वो क्या है, लस्ट, ये सब बैड डेमोनियक क्वालिटीज है। तो चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए कि ये गुड क्वालिटी जब होगी तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होगा और हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे और उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और उससे पॉजिटिव आउटकम जनरेट होकर दैट विल प्रोड्यूस हैप्पीनेस। बट अगर हम डेमोनियक क्वालिटीज हम क्या हमारे अंदर है, हम उनको बढ़ावा देते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, तो उससे नेगेटिव थिंकिंग होगा, नेगेटिव आउटपुट आएंगे और उससे इट विल प्रोड्यूस मिजरीज एंड सफरिंग व्हिच वी डोंट वांट, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तभी देखिए पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज एलिवेट्स अस इन लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग क्या करता है, हमें एलिवेट करता है, और नेगेटिव थिंकिंग जो हमें क्या करता है, डिमोरलाइज करता है, नीचे खींचता है, नीचे लेके जाता है। तो it takes us toward the suffering, and positive thinking will take us to the unending happiness. Now we are going to learn with a very important lesson of our life, book of your life. So tip 1, so art of smart work we are going to study in today's session. तो देखिए अभी कि हम लोग आजकल देखते कि everybody is talking. Yes, That previous slide means that सीढ़ी means that staircase. yes, Yes, that's one. Wait a what minute. you want to ask about that staircase, can you tell me? No, okay, sir. I just want to check again the image. Fantastic. Okay, yes, okay, shall we move ahead now? Really. Okay, thanks a lot. Okay, so let's move further. तो देखिए आजकल के जीवन में सब लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। Everybody wants to become smart, है ना। Everybody wants to become smart. Now phones are becoming smart, but people are becoming dumb. So all smartness which were there in our brain, that is coming in the phones, and we are losing our smartness. But now in today's session we are going to learn what is the art of smart work, okay, how to work smarter and not harder. तो उसके अंदर टिप 1 है, तो वो है बुक ऑफ योर लाइफ। तो हम लोग बुक ऑफ योर लाइफ से शुरुआत करते हैं। देखिए book we have, like we can compare our life to be one book, and in that there may be 100 chapters. Suppose 100 chapter, every year can be considered to be as one chapter of our life, and each chapter will have 365 sub units, that means 365 days in a year. तो हर दिन हम अपने बुक ऑफ लाइफ को कैसे भरते हैं, उसके अंदर क्या लिखते हैं, क्या कंटेंट डालते हैं, वो डिसाइड करेगा कि हम कैसे होंगे। तो देखिए दिस पर्सन एंड द लेफ्ट साइड ही इज एलिंग, शाउटिंग एंड एंग्री, स्ट्रेसफुल एंड ऑल, एंड अनदर साइड अगर आप दूसरे साइड पे देखिए दैट पर्सन वेरी जॉयफुल, हैप्पी, सेटिस्फाइड, है ना। तो हम कैसा अपने जो बुक ऑफ लाइफ है उसके अंदर क्या लिखते हैं, वो डिसाइड करेगा कि हम इन दोनों में से कौन सी पर्सनालिटी बनेंगे या कौन सी पर्सनालिटी की तरह चीजें हमारे लाइफ में आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए सो पीपल वांट नाउ इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड ईगो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। तो इसमें एक पिक्चर दिख नहीं रहा, बट वो पिक्चर में सम पीपल आर वेरी पुअर बट दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड दे आर गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। और दूसरा पिक्चर में देखेंगे आप, दे आर वेरी रिच बट दे आर सो मच वेल्थ एंड मनी बट दे आर लव bankrupt, they don't have love, they are not receiving love from each other, they don't have proper relationships with each other, ठीक है ना। तो that we can see।
तब इसमें ये जो बहुत अच्छा एनोलॉजी आगे आता है चैरियट ऑफ बॉडी, ये उपनिषदाज में बहुत अच्छा एनोलॉजी आया है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चैरियट में देखते हैं 5 जो हॉर्सेस है, 5 जो घोड़े है ना, तो दे आर कंपेयर टू 5 सेंसेस। अपने जो 5 सेंसेस है, जैसे आईज, ईयर, है ना, हम देखते कि ये सारे जो 5 सेंसेस है हमारे, हैंड, लेग्स वगैरह, तो हमारे पास 5 ज्ञानेन्द्रियाज है और 5 कर्मेंद्रियाज है। तो दिस हॉर्सेस आर लाइक 5 कर्मेंद्रियाज, ठीक है। 5 कर्मेंद्रियाज को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। जो जैसे कि कंप्यूटर को क्या है हमारा, देखते कि सर्वो मोटर्स है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है कुछ, है ना। तो जो प्रिंटर वगैरह, वो जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस उसको लगे हुए हैं जो एक्चुअल फंक्शनिंग करते हैं एक्सटर्नली, तो वो जो है वो हमारे 5 सेंसेस है। हम देखते हैं कि कर्मेंद्रिया जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो दे आर कंपेयर टू 5 सेंसेस। फिर उसके बाद माइंड, ये जो स्ट्रिंग है, लगाम बोलते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो हॉर्स को हम कंट्रोल करते हैं कि किस डायरेक्शन में चैरियट को लेके जाना है, उसको स्पीड को भी जो कंट्रोल करना है, माइंड वो जो है वो स्ट्रिंग से, लगाम से कंट्रोल करते हैं। दैट इज कंपेयर टू माइंड। अपना जो मन है, अपना जो दिल है, वो माइंड है, उसको कंपेयर किया गया है उसको, ठीक है। फिर ये जो चैरियटर है, जो सारथी है, उस चैरियट को चलाने वाला, दैट इज कंपेयर टू और इंटेलिजेंस, बुद्धि के साथ उसको कंपेयर किया गया है हमारे, ठीक है। और जो पैसेंजर है, दैट इज और वी अवर सेल्फ, जो सोल है एक्चुअल, जो इस बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, तो दैट इज द सोल। जो आत्मा है, वो जो पैसेंजर है, रियल पैसेंजर, उसको कंपेयर किया गया है। तो उस आत्मा को, जो सोल है, मुझे अगर राइट डायरेक्शन में जाना है, सही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, माई इंटेलिजेंस शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड स्प्राउट, है ना। इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग एंड स्प्राउट होगा तो वो क्या करेगा, उस लगाम को, माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, तो वो 5 सेंसेस को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि 5 सेंसेस को अच्छे से कंट्रोल करेगा तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, एंड विल गेट द रियल हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये चैरियट ऑफ द बॉडी है। तो अभी देखिए हाउ टू मेक दिस, अभी एक नेक्स्ट इसमें हम देखना है कि हमें ये जो बुक ऑफ लाइफ है उसको मैच्योरली लिखना है। एवरी डे वी हैव टू राइट इट वेरी मैच्योरली, वेरी केयरफुली, वेरी कॉशियसली, उसके अंदर हमें लिखना है। तो वहां पे 2 टाइप की क्वालिटीज होती है। कुछ ये जो अंदर का येलो सर्कल आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो येलो सर्कल है, दैट इज, हम देखते हैं कि वो क्या है आपका येलो सर्कल, दैट इज गुड क्वालिटीज, है ना। जो हमने देखा था डिवाइन क्वालिटीज, और जो एक्वायर्ड क्वालिटीज है वो क्या है, डेमोनियक क्वालिटी, जो बाहर से हमने अंदर, अपने अंदर जो एक्चुअली इनसाइड अस देयर आर वेरी लाइक स्टोर हाउस ऑफ गुड क्वालिटीज, बट क्या है कि हमने बाहर से बहुत सारी बुरी क्वालिटीज को एक्वायर्ड किया है। So if you want to be happy in life, you have to remove these acquired qualities. Then only these innate qualities will remain. That will give you peace, satisfaction, happiness, unending happiness. So that is the thing. So let's go ahead. तो देखिए, so some acquired bad qualities are simple. जैसे कि postponing, तो कुछ लोगों को पोस्टपोन करने की आदत होती है। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट, अभी 8 दिन के बाद एग्जाम है, बोले कि आज से, कल से मैं पढ़ाई चालू करने वाला हूँ, बस कल से, बस आज के दिन थोड़ा मूवी देख लेता, थोड़ा टाइम पास कर लेता, और कल से पढ़ाई चालू करूंगा बस। फिर कल बोलता है ठीक है, बस आज के दिन बस थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ, कल से नहीं तो शाम से चालू करता हूँ। शाम को बोलता है कल सुबह से। So some people have habit of postponing. They keep on postponing and never complete this study. ठीक है। And some people, उनका मूडी होते, they are like moody, we can say that, कि आज थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, आज बहुत सारे बादल है आसमान में, तो इसलिए क्या होगा, मैं काम करने का मूड ही नहीं हो रहा है, तो काम नहीं करेंगे, या मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा। तो देयर आर सम पीपल आर मूडी, तो दैट इज लाइक सिंपल acquired bad quality. Some bad qualities are very serious. Some people get easily irritated or small things, they become angry. फिर कुछ लोग जो है बाकी लोगों के साथ मिल के या कोऑपरेट करके काम नहीं कर सकते, अकेला ही काम करना चाहते, तो इनएबिलिटी इन टीम प्लेइंग। फिर और थोड़े और ज्यादा ग्रेव कुछ क्वालिटीज है, जैसे कि लैकिंग लॉयल्टी, सम पीपल आर नॉट लॉयल, they cheat their authorities, they cheat in the exams, you can see that, they cheat in the companies, in the blueprint, या कुछ डेटा किसी को बेचेंगे पैसे के लिए, so that is a very grave acquired bad qualities. Bad mouthing, they speak very bad and about the faults of others, about इसके उसके बारे में, ये वो चुगलियां करते रहते हैं, इसके बारे में उसके बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं, तो वो जो है कुछ ग्रेव बैड क्वालिटीज है। देखिए, तो अभी ये था टिप 1
तो हमें इसमें से हमने क्या सीखा कि एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब अंदर के इनेट क्वालिटीज बचेंगे, एंड दैट विल ब्रिंग अस हैप्पीनेस. सो दिस वाज द टिप 1. And these bad qualities distract us from focusing and concentrating on our work, and it reduces the efficiency of our studies. It may be studies, it may be our work. So वो हमें उन क्वालिटीज को हटा के हम लोग एफिशिएंट बन सकते हैं अपने लाइफ में और ज्यादा. तो अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टिप, सेल्फ टेस्ट माय पर्सनालिटी टाइप. तो अभी हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट लेने वाले हैं. तो आप सब इस टेस्ट का आंसर आपके चार्ट में टाइप कर सकते हैं, या खुद आप नोटबुक पेन लेके आप अपने आपके पास लिख के रख सकते हैं, या ऑडियो ऑन करके आपने बोल भी दिया तो भी चलेगा कि आपका कौन सा पर्सनालिटी टाइप है हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, यू आर विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी. तो चलिए विल गो अहेड टू दिस टेस्ट. तो इसके अंदर देखेंगे कि पहला गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस. तो अभी देखिए कि अगर किसी कोई लीडर बनना चाहे, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लीडर्स. तो ये देखिए पहले पिक्चर में आप देखेंगे गुडनेस वाला is very like cool, calm leader, and is peacefully training, coaching his employees or his subordinates. And दूसरा जो is yelling at subordinates, that other person is yelling, shouting and not training properly, not coaching them well. So वो जो है that is like. and तो अब मुझे बताइए दूसरे पिक्चर में बच्चों, दूसरे पिक्चर में all of you can you tell me that. सॉरी मुझे बच्चों कहने की आदत, बिकॉज आई एम प्रोफेसर, सो व्हेन आई टीच इन द माय क्लासेस that time I use the word this, but that's why I'm habituated to that. So all of you are very senior one. So can all of you tell me that कि दूसरे पिक्चर में उन दोनों में से क्या लीडर और जो सबऑर्डिनेट, उन दोनों में से कौन हैप्पी है? ये जो दूसरा पिक्चर दिख रहा है आपको पैशन रजोगुण वाला, उसमें कौन हैप्पी है दोनों में से? वो एम्प्लॉय हैप्पी है, सबऑर्डिनेट हैप्पी है कि लीडर हैप्पी है? नो वन. आंसर इज नो वन, है ना. वो दोनों भी हैप्पी नहीं, दोनों भी दुखी, बोथ आर सफरिंग. एंड थर्ड इसमें इग्नोरेंट पर्सन, ही जस्ट थिंकिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. सोच डे ड्रीमिंग, ही इज डे ड्रीमिंग, ही डोंट नो व्हाट टू डू, एंड ही इज डिप्रेस, स्ट्रेस, एंजाइटी. तो जो है थर्ड वाला. तो ये तीनों में से कौन सा लीडर बच्चों, कौन सा नोबल विजनरी लीडर आप चूज करना चाहेंगे? यस, which is the good one among all these three? Can anyone tell? गुडनेस वन. ठीक है, सतोगुण. अभी देखिए हम लोग अभी ये जो देखने वाले हम लोग, व्हाट इज गुडनेस, व्हाट इज इग्नोरेंस, व्हाट इज पैशन, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम भगवत गीता में बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. तो उसको हम देखने वाले थे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको काम आने वाला है. तो आपको पता करना है कि आप पर्सनालिटी की इग्नोरेंस में है कि गुडनेस में है कि पैशन में है. और ये पता करने से आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ, मैं अभी एक्चुअली कहाँ पे हूँ, कहाँ पे जाना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा. तो व्हाट एम आई लैकिंग, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, वीकनेस, एवरीथिंग यू कैन नो बाय नोइंग दिस. सो मोड ऑफ इग्नोरेंस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री थिंग्स: निद्रा, आलस्य एंड प्रमाद. निद्रा मतलब स्लीपिंग, ओवर स्लीपिंग, बहुत ज्यादा सोना. आलस्य मतलब बहुत लेजीनेस. प्रमाद मतलब मैड. तो देखिए अभी लेजीनेस मतलब अभी कोई भी काम करने के लिए पोस्टपोन करना या ना करना. और स्लिप बहुत ज्यादा, लेजीनेस की वजह से हम बहुत सोते रहेंगे. सोते रहने की वजह से क्या होगा, विल बी इनअटेंटिव इन आवर स्टडीज और जॉब, वो नहीं करेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे, डल रहेंगे, हमेशा होपलेस रहेंगे, उसकी वजह से डिप्रेस हो जाएंगे. और मैडनेस मतलब क्या बच्चों, कुछ लोग सुसाइड कर देते छोटे छोटे चीजों के लिए. एंड सम पीपल ड्रिंक, स्मोक, हैव अफेयर्स एंड गो टू द डिफरेंट थिंग्स, ऑल डिस्ट्रक्टिव हैबिट. तो अभी देखिए हमें पता है कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, उसके ऊपर लिखा हुआ है ना. ड्रिंकिंग भी, उससे इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम होंगे. अफेयर्स, इट में लीड टू द एड्स. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स. स्टिल दोस पीपल डू दैट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैड. इसलिए उसको मैडनेस बोला है, प्रमाद बोला है. ठीक है. एंड अनदर एस्पेक्ट इज दे आर कंफ्यूज, दे आर फुलिश, दे आर इनडिसिजिव, इनसिक्योर, ऑलवेज फेयरफुल, डरे हुए रहते हमेशा. ठीक है. फिर हमेशा पैनिक रहते, रोते रहते, वो चीज के लिए, और सोचते ही नहीं, बिना सोचे ही डिसीजन ले लेते हैं. सोचते ही नहीं, वो बस करते रहते एक्शन. कुछ भी करने से पहले सोचते ही नहीं है ना. सो दैट इज द प्रॉब्लम. तो मोड ऑफ, दिस इज मोड ऑफ इग्नोरेंस. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोड ऑफ पैशन. तो उनका जो कैरेक्टर, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय संग एंड तृष्णा. ठीक है. अटैचमेंट एंड
थर्स्ट फॉर नेम फेम प्रेस्टीज, तो वो जो है दैट इज पैशन। तो देखिए पार्शियल थिंकिंग, ये थोड़ा सोचते और थोड़ा करते। तो देखिए इसमें क्या है, ओवर एम्बिशियस, दे आर टू मच एम्बिशियस। उनका कैपेसिटी क्या, सोचते ही नहीं, वो कैपेसिटी बहुत कम है, बट दे आर टू मच एम्बिशियस। दैट्स व्हाई दे बिकम डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल, एंड दे want to see glamour and show glamour. I am very powerful, I am very this and that and all those things. फिर उसके बाद हम देखते they are in cutthroat, always they are in cutthroat competition. They are very pride, I am the best, I am the top and all. And they are always angry on the others. And also हम देखते कि they take very snap decision, कुछ सोचते ही नहीं है, वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, बहुत इमोशनली डिसीजन लेते हैं। तो वो सोचे बिना सोचे ही डिसीजन ले लेते हैं। But they are very attached to something, like attached to the especially women's and all. So हम देखते कि they have bossing tendency, just मैं सब कुछ करूंगा, बस आप फिर सर हम क्या करें, आप तालियां बजाओ, देख बैठ के तालियां बजाओ, आपको कुछ करना नहीं, बस मेरी वाह वाह करो, सब कुछ मैं करूंगा बस ऐसे, और मैं जो बोलता हूँ बस वो सुनो, फॉलो करो। सो लाइक दैट they have bossing tendency, and they have thirst for honor and prestige. They want prestige, honor, उनको उसके लिए they are craving for it. So like that, and so they are very envious of others. अगर उनसे कोई ज्यादा पावरफुल है, उनसे कोई ज्यादा स्मार्ट है, एक्सपर्ट है, तो they are envious of those people. They become envious and they try to harm them also. So, and they are individual player. They cannot like be a part of team के साथ वर्क नहीं कर सकते, वो अकेले, जो मैं करके दिखाऊंगा, मैं लड़ूंगा, आप कपड़े संभालो या आप तालियां बजाओ, ऐसा है उनका। दैट इज लाइक मोड ऑफ पैशन। हम लोग देखते हैं कि दैट इज संग और कृष्णा। आई विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस। तो सुखम एंड ज्ञानम, तो दिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सुखम एंड ज्ञानम, हैप्पीनेस एंड नॉलेज। तो ये जो लोग हैं वो बिना कोई भी चीज करने से पहले कम से कम 2 बार सोचते हैं, एटलीस्ट दे थिंक ट्वाइस, है ना। दे लुक बिफोर लिप, है ना, लुक बिफोर यू लिप। तो आप जंप करने से पहले देखो, ऐसा नहीं कि बाद में गड्ढे में गिर गया और बाद में सोच रहे मैं क्यों गिर गया, पहले देखो और उसके बाद आप क्या करो, जंप करो। सो दे लुक बिफोर दे लुक, ऐसा है। तो अभी देखिए दे आर वेरी रेगुलेटेड, दे आर सिंपल इन देयर लाइफ। उसके बाद दे आर थॉटफुल, उसके बाद दे थिंक वेल एंड डिसाइड, हैपहैजर्ड डिसीजन नहीं लेते। दे आर नोबल, वेरी सेंटली, दे आर हेल्पफुल टू अदर, दे आर वेरी कंपैशनेट टू द अदर्स, they are creative thinking, they do the very efficient in their overall spectrum of their life, they are very tolerant, they have knowledge, they have wisdom, they are submissive to the elders and superior, are respectful to all, disciplined and obedient, their mind is very control, compassionate, control senses, calm, friendly। तो देखिए बच्चों, अगर हम देखें हम देख लेते हैं जो सारी चीजें है कि वी हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। हम लोग कंट्रोल, विंड को कंट्रोल किया, एयर, हम देखते कि वाटर को कंट्रोल किया, वी कैन स्विम इन द वाटर, वी कैन फ्लाई इन द एयर, वी हैव कंट्रोल ओवर ऑल द थिंग्स, बट वी हैव फेल्ड टू कंट्रोल आवर माइंड। दैट्स व्हाई वी आर नॉट हैप्पी। Advance in technology, gadgets and facilities and amenities, but you have failed to control our mind. That is the root cause of our unhappiness, or our sufferings and miseries. So just we'll begin ahead. So देखिए, we'll just see this short story, situation tackling exercise. We are going to do very amazing exercise now. तो ये स्टोरी आपको सबको पता होगा, है ना। तो अपने बहुत सब लोगों ने सुना होगा या देखा होगा। तो जो हैट वाला कैप से रहता है, कैप सेलर था, तो he was going through jungle and he became tired and he thought to take some rest at some below some tree. So then he sat below that tree and then he dozed little bit. So that time there were some naughty monkeys on that tree, है ना, कुछ naughty monkey थे उस ट्री पे। तो वो सब क्या हुए, नीचे उतरे और उन्होंने जो कैप्स थे उस टोकरी के अंदर, वो सारे कैप्स उठा के अपने, उन्होंने देखा कि ये जो आदमी है उसने कैप पहनी हुई है, उन्होंने क्या किया, वो सारे कैप्स उठा के अपने सर में पहना दिए, ठीक है ना। तो देखिए इसके ऊपर एक बहुत अच्छा पोएम बना हुआ है, जो इन्होंने जो राधेश्याम दास जी ने जो कोर्स डिजाइन किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा पोएम बनाया इसके ऊपर। दैट पोएम यू कैन रीड। तो देखिए, नाउ माय क्वेश्चन इज
कि इसके अंदर अभी, और जब थोड़ी देर बाद वो जाग जाता है कैप्सूलर, तो देखता है उसके सारे कैप गायब है जो बेचने के लिए जाने वाला था। तो उस टाइम पे व्हाट, अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते, ठीक है ना? तो अगर उसमें इग्नोरेंस वाले पर्सन का क्या बिहेवियर रहेगा, पैशन वाले का क्या रहेगा, गुडनेस वाले का क्या रहेगा, तो वो हमें सोचना है। तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं आपके आंसर, व्हाट इग्नोरेंट पर्सन विल डू, व्हाट पैशनेट पर्सन विल डू, एंड व्हाट गुडनेस पर्सन। तो देखिए, इग्नोरेंट पर्सन जैसे ही देखेगा कि उसके सारे कैब्स जो है वो चले जा चुके, तो वो क्या करेगा, वो रोते बैठेगा, चिल्लाएगा, ही विल एल, जस्ट अ मिनट, ही विल एल शाउट एंड कीप ऑन क्राइंग, एंड वो ऐसे खाली हाथ लौट जाएगा। एंड हम देखते हैं कि पैशनेट पर्सन विल क्या करेगा, वो कुछ पत्थर ढूंढेगा, उनको मारेगा, उनको पीटेगा, उनके ऊपर चिल्लाएगा, बट उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, मंकीज वैसे कुछ टॉप कैप देने वाले नहीं। बट गुडनेस पर्सन विल थिंक, पीसफुली विल थिंक कि मंकीज आर वेरी गुड एट कॉपिंग, तो वो क्या करेगा, अपनी कैप उतार के उस टोकरी में डाल देगा। तो वो देख के सारे मंकीज क्या करेंगे, उनकी कैप उतार के उस टोकरी में रख देंगे, बराबर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये पैशन, गुडनेस और इग्नोरेंट पर्सन कैसे सेम सिचुएशन को कैसे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और कैसे वो टैकल करते हैं। तो हाउ goodness person can tackle situation very nicely. So that was the lesson from the story. So now we'll go to the next. So know your personality type हमने देखा उसके अंदर, तो हम कौन से टाइप के और हमें कौन सा बनना है। तो फ्रॉम दिस एग्जांपल्स वी अंडरस्टूड दैट वी हैव टू बिकम गुडनेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है ना? तो राजा, राज मतलब देखिए किंग जो है जनरली ही वाज, ही इज वेरी पैशनेट, एंड ऋषि सेंटली पर्सन आर वेरी, दे आर इन सो मच गुडनेस। तो अवर लाइक वी ऑल आर सो मच एम्बिशियस, हमें भी बहुत सारे एम्बिशंस है, we are passionate, so it's not a problem, we should have ambitions. Having ambition is not a problem, but those ambitions should be guided by the goodness, है ना? तो वो गाइड करें, जैसे हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज was guided by the रामदास स्वामी and तुकाराम महाराज, ग्रेट सेंट लाइक तुकाराम महाराज एंड रामदास स्वामी एंड ऑल। उसके बाद हम लोग देखते चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य इज गाइडेड बाय चाणक्य एंड ऑल। सो ऐसे अलग अलग जो ग्रेट राजा थे, किंग्स थे, दे वर गाइडेड बाय द सेंटली पीपल। तो सिमिलर passion, our ambition should be also guided by the wisdom, by the knowledge. Then only we'll able to be the noble leader, great leader, like that it is there. तो देखिए, सात्विक एनलाइटन सोल, मैन ऑफ परफेक्शन, नोबल, लव एंड कंपैशनेट, ही इज वेरी लविंग, कंपैशनेट एंड कमर्शियल बिजनेसमैन। वो राजसिक है, ठीक है, एग्रेसिव, फुल ऑफ सेल्फिश ड्राइव्स एंड लाइक हम देखते हैं कि उसमें वेरी सेल्फिशनेस होगा, वो हुक और क्रुक, ही वांट टू गेट प्रॉफिट इन हिज बिजनेस एंड तामसिक, वेरी लेजी, सेंसुअस वन, इनएक्टिव, कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है, सोता रहता है, पोस्टपोन करता रहता है चीजों को, लोगों को ब्लेम करता रहता है, क्रिमिनल, लॉ ब्रेकर, ऑल दीज आर इन इग्नोरेंट कैटेगरी, शॉर्टकट ढूंढते हैं लाइफ में। तो गलत रास्ते से भी क्या करना चाहते हैं, जल्द से जल्द बहुत सारी अच्छी चीजें, फैसिलिटीज एंड एम्यूनिटी अचीव करना चाहते हैं। तो दैट इज लाइक दैट इज लाइक इग्नोरेंस वन, तामसिक पीपल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी शुड, आवर पैशन शुड बी गाइडेड बाय दी goodness, then we can do wonders in life, we can like it will be very efficient one. So that was the thing. Now देखिए, atom that boost mode of goodness in our personality, ठीक है। अभी सर आपने अब तक बता दिया कि goodness is very important, we should be a goodness type of person. So how can I boost my goodness? So that is the very important question now. तो इसमें पहला जो है A, तो हम उसके लिए ABCDE फॉर्मूला देखेंगे, ABCDE। तो A फॉर, देखिए अभी इसमें क्या है कि एसोसिएशन ऑफ वेरी सेंटली पीपल, वेरी knowledgeable people, those who are having wisdom, they are very, those who possess positive qualities, love, compassion, devotion, etc. You should associate with them, क्योंकि हम जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। So that's why association is very important. So that is the first thing. Then second हम देखेंगे कि books, तो बुक्स कौन से पढ़ते, जैसे वी शुड स्टडी द स्क्रिप्चर्स लाइक विजडम बुक्स लाइक भगवत गीता एंड भागवतम, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, they are full with wisdom, knowledge and practical applications to the life, so we should read such books. Third is
chanting and meditation, mantra meditation and chanting, we are going to teach you in future sessions. What about what is exactly the chanting and meditation? That will also help us to control our mind and to develop the positive qualities and all. Third is diet. Diet is also very important, है ना, कि हम लोग we should take a sanctified diet, fruits, milks, grains, vegetables, natural products, karma, sanctified karma free diet. These all these sanctified food can be offered to the god, and then that becomes karma free sanctified diet. तो वो जो डाइट है वो, तो डी फॉर डाइट. एंड फिफ्थ इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने जो टेम्पटिंग इन्वायरमेंट है, तो अनफेवरेबल जो निगेटिव इन्वायरमेंट है, उससे क्या होना चाहिए, हमें बचना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए. वी शुड ट्राई टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल एम्बियंस. आप सबको एक्सपीरियंस होगा कि किसी बहुत अच्छे एकदम लाइव किसी अच्छे मंदिर में गए, आपको पता चलेगा उधर की उधर का एनवायरमेंट, उधर के जो वाइब्स होते हैं, दे आर डिफरेंट ओनली. वहाँ के जो वाइब्रेशन है वो बहुत अलग होते हैं. ठीक है, तो ये जो ABCD फॉर्मूला है, दैट विल ब्रिंग अस टू द गुडनेस. ये हमें गुडनेस में लाएगा. तो ये था उसके बारे में. तभी देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिड रिसर्च. तो वो मंत्रा मेडिटेशन जो आपको बताने वाले, तो कुछ अंधश्रद्धा नहीं है या कुछ ब्लाइंड फेथ नहीं. उसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि मंत्रा मेडिटेशन जो है उससे रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड अचीव कर सकते हैं हम लोग विथ अलर्टनेस. और ऐसे वो सोया नहीं, माइंड क्या होगा, रिलैक्स भी रहेगा और अलर्ट भी रहेगा. तो देखिए अभी हम जो ये देखने वाले, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी देखिए इसमें अगर हम बिलो 8 है हमारा माइंड के जो वेव्स है, तो अगर माइंड वेव ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी जो है अगर 8 साइकिल पर सेकंड से अगर नीचे हम लोग, तो क्या होगी, विल फील ड्राउजी. और अगर 3 से नीचे होगा तो हम सो रहे हैं, हम सो जाएंगे. ठीक है ना, 3 से नीचे होगा तो. और अगर वो 8 के ऊपर होगा, 8 से 13 के बीच में, दैट विल बी लाइक विल बी वेरी रिलैक्स एंड अलर्ट जोन. एंड अगर वो 13 के ऊपर होगा तो विल बी एक्टिव, एंड 18 के ऊपर विल बी हाइपर एक्टिव. तो देखिए बच्चों, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि बिलो 8 जो है, बिलो 8 दैट इज तमोगुना, मोड ऑफ इग्नोरेंस. 8 to 13 is a goodness, mode of goodness, and 13 to 18 is a passion. और एंड अगर हम देखेंगे 18 के ऊपर, इट इज हाइपर एक्टिव, इट इज डिस्ट्रक्टिव जोन कंप्लीटली. तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ पे हाइपर एक्टिव की वजह से बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, बहुत सारे दे गेट ब्रेन हेमरेज एंड दे जस्ट suddenly fall down on the floor and die immediately. So hyperactive is very dangerous one. So meditation brings us with our like brain waves from 8 to 13. तो हमें गुडनेस की रेंज में लेके आते हैं. कहाँ पे, वहां पे हमारा जहाँ पे माइंड बहुत रिलैक्स होगा, अलर्ट होगा, वहां पे हमें लेके आता है. फिर नेक्स्ट ये था टिप 2. थर्ड टिप देखिए, सेल्फ टेस्ट. एम आई अ प्लस टाइम मैनेजर और हमें और माइनस टाइम मैनेजर. ठीक है, तो वो हमें देखना है अभी. तो दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, सो यू कैन जज योर सेल्फ. तो अभी देखिए नेक्स्ट बच्चों, विल जस्ट थर्ड थिंग. अब इसके अंदर प्लान, अगर आई एम वेरी इफ वी आर वेरी गुड एट प्लानिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, पेन पेपर लेके आपको एक प्लस लिख लीजिए. क्या करना है आपको, एक प्लस लिख लीजिए. अगर आप बहुत अच्छे हैं प्लानिंग में, तो देन यू कैन write 1 plus. If you, whatever your plan, if you do also all those things nicely, then we can consider उसको जो है, तो ये सेकंड प्लस लिख लीजिए. आप क्या कर लीजिए, सेकंड प्लस. और तीसरा, अगर हम क्या करते, लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते, उनके साथ अच्छे से कनेक्शन है हमारा, वी आर फ्रेंडली विथ ऑल द पीपल एंड वी प्रॉपरली कम्युनिकेट विथ ऑल, देन दैट इज थर्ड प्लस. तो हम, कुछ लोग बहुत सिर्फ प्लानिंग में अच्छे होते, बट वो करते ही नहीं कभी. कुछ लोग प्लानिंग भी करते और करते भी चीजें हैं, बट इंटरेक्ट नहीं करते, कनेक्ट नहीं हो पाते लोगों के साथ में. कुछ लोग क्या करते, लोगों के साथ सिर्फ कनेक्ट हो पाते हैं, बट कुछ करते ही नहीं, वो लोगों के साथ टाइम बहुत सारा वेस्ट कर देते हैं, वैसे रहते हैं. तो ऐसे कुछ लोग प्लान ही नहीं करते और लोगों के साथ कनेक्ट भी नहीं होते, बस काम करते रहते, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इतना सब हार्ड वर्क करते रहते, बट दे आर नॉट एफिशिएंट एट ऑल. तो ऐसे चीजें हैं. तो हमें, आपको पता तो देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में है. तो आइदर यू मे बी प्लस प्लस प्लस. प्लस 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 इज वेरी वेरी रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा रेयर है. बट यू मे बी प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, या प्लस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस. सो यू जज यूर सेल्फ कि आप कौन से इसमें है. ठीक है, तो
से टाइप के मैनेजर है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। अभी देखिए आंसर हम देखते हैं इसका, तो अगर तीनों प्लस है तो यू आर वेरी बैलेंस पर्सन, तो विच इज वेरी वेरी रेयर कि आप प्लान भी करते प्रॉपरली और चीजें जो प्लान किया वो अच्छे से करते भी है टाइम पे और इंटरेक्ट भी करते, कनेक्ट भी हो पाते लोगों के साथ में। फिर प्लस प्लस माइनस जो है तो वो प्लानिंग भी करते अच्छे से और करते भी है, बट क्या है लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं खुद की चीजें अच्छे से कर पाते बट लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ही इज नॉट अ गुड टीम प्लेयर, वो इंडिविजुअल प्लेयर है। देन थर्ड इज माइनस प्लस प्लस, तो वो क्या करता है, वो देखो दूसरों के अच्छे से चीजें कर को बोला तो बहुत अच्छे से कर पाता है, बट खुद की चीजें नहीं कर पाता, खुद की जो ड्यूटीज है वो अच्छे से नहीं करता। तो वो जो देखा हमने कि वो क्या है, हम लोग देखेंगे कि वहां पे हम देख पा रहे कि वो माइनस प्लस प्लस है, कौन सा है, माइनस प्लस प्लस, ठीक है, दैट वाज द थिंग। एंड नेक्स्ट जो है देखिए कि नेक्स्ट वाला कौन सा है, प्लस माइनस प्लस, तो उसमें कि कुछ लोग क्या करते, प्लानिंग बहुत अच्छे से करते, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, बट वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो करते ही नहीं चीजें, बस लोगों के साथ टाइम टाइम बिताते रहते, टाइम वेस्ट करते रहते, दे नेवर डू द थिंग्स एक्चुअली, तो दैट इज दी लास्ट प्लस माइनस प्लस। तो देखिए अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज पे दो माइनस है तो आप निगेटिव टाइप ऑफ मैनेजर है, अगर हम, और अगर उसमें दो प्लस है हमारे इसमें तो हम लोग प्लस टाइप ऑफ मैनेजर है, प्लस टाइम मैनेजर। तो हमारा टाइम हम कैसे यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम क्या प्लस टाइम मैनेजर है कि माइनस टाइम मैनेजर है वो हमें डिसाइड करना है अभी। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो है डे ड्रीमर, वर्कोहोलिक एंड, तो डे ड्रीमर जो पहले वाले जो प्लान करते सिर्फ कुछ करते नहीं, लोगों से कनेक्ट करते नहीं, वो डे ड्रीमर है, सिर्फ क्या करते रहते, प्लानिंग करते ही मैं ऐसा करूंगा वो करूंगा और कुछ करते ही नहीं, दे आर डे ड्रीमर। वर्कोहोलिक जो प्लान नहीं करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ चीजें करते रहते, तो उनमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ चीजें ऑलरेडी अगर रेडीमेड कोई और कर सकता है, किसी और ने की है, तो उनसे अगर मुझे मिल सकती है वो चीज, तो फिर क्या है, मुझे किसी वो चीज मिल सकती है तो मुझे फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों करने का, उसको क्यों ये करने का ना, टाइम वेस्ट नहीं करने का, उसमें एनर्जी एफर्ट्स क्यों डालने के, तो वो वर्कोहोलिक होते हैं। दे आर लाइक, देखिए डे ड्रीमर्स इग्नोरेंट टाइप ऑफ पीपल, तमोगनी पीपल, वर्कोहोलिक आर लाइक पैशनेट पीपल एंड पीपल फ्रेंडली बट पुअर एट फिनिशिंग वर्क। तो वो क्या है कि वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं बट काम करते ही नहीं है, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो तीनों भी गलत है, तो तीनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, हमें अच्छे से प्लान भी करना पड़ेगा, जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और पीपल के साथ कनेक्ट भी करना पड़ेगा, देन विल बी द प्लस टाइम मैनेजर, देन विल बी द बैलेंस पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, हमने देखा, ठीक है। तो अभी देखिए कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो अपना डिसाइड करेगा कि अपना हैप्पीनेस, क्या हमें हैप्पीनेस मिलेगा कि हमें सफरिंग मिलेगा, वो हमें क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि whether we will get happiness or suffering or distress and what all things we are going to get. So time is very very important. Somebody says time is money, but time is much more important than money, क्योंकि मनी गई तो हम फिर से अचीव कर सकते हैं, बट टाइम अगर एक बार गया तो हम लोग उसको फिर से अचीव नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज टाइम वेरी इफिशिएंटली प्रॉपरली, ठीक है। तो देखिए इसमें कि अगर हम लोग, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताने वाला आपको, चार इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की बात करने वाले। इसमें एक डोपामाइन जो हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए डोपामाइन हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एंडोर्फिन जो हार्मोन है वो हमें हेल्दी एंड जॉयफुल फीलिंग आने के लिए, रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेरोटोनिन जो है वो सेल्फलेस, सोसाइटी में मैंने कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सेल्फलेस एक्टिविटीज करना चाहिए दूसरे के प्रति, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्सीटोनिन जो है सोशल कनेक्शन की, सोसाइटी में ये सब मेरे कनेक्शन वाले मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, ये है मेरा कंट्री है, वो सब, ये जो कनेक्शन कनेक्टिविटी के लिए ये जो ऑक्सीटोसिन है वो वाला हार्मोन इंपॉर्टेंट है। बट रिसर्च में साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि उन्होंने रिसर्च किया तो वो बता रहे हैं कि ये जो आजकल हम लोग मीडिया और गैजेट्स के कांटेक्ट में बहुत रह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं गैजेट के साथ में, मीडिया के साथ में, जिसकी वजह से ये जो चार हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये सबको अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को, सारे स्पेक्ट्रा को अफेक्ट कर रहा है, जैसे अपने स्लीप, अपनी खुशियां, अपना हेल्थ, अपना रिलेशनशिप, ये सब क्या करते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
to have satisfaction and peaceful mind in our life. एंड जब तक हम हैप्पी नहीं होंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पीसफुल नहीं होंगे, तब तक हम लोग क्या कर सकते लाइफ में, कोई भी चीज इफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकते. तो हम गैजेट के साथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टेक्नोलॉजी के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतने 4 हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, तो विच विल लीड टू द मिजरी. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग. तो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखने को मिलने वाला है. तो ये चीज आपको लाइफ के हर स्पेक्ट्रम में काम आने वाला है. देखिए यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है. पहला क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. जैसे अभी सिलेंडर खत्म हो गया है, अरे सब्जी हाफ कुक्ड है, तो आप भी सिलेंडर लेके आओ, तभी क्या होगा, आपका सब्जी बनेगा, खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं. तो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो क्राइसिस वाला जोन है. सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, 4 दिन के बाद सिलेंडर खत्म होने वाला, तो कुछ तो प्लान करो, तो डबल सिलेंडर लेके आओ या कुछ और सिलेंडर का ऑर्डर करके रखो. तो वो प्लानिंग करके क्या होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है बट इट्स नॉट अर्जेंट. आप प्लान कर सकते, प्लान करके, प्री प्लान करके प्रॉब्लम जो आने वाला है उसको पहले से आप टैकल कर सकते, उसको हैंडल कर सकते हैं, एंड यू कैन बी पीसफुल और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज वो गुडनेस वाला क्वाड्रेंट है. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है पैशन वाला क्वाड्रेंट है, कि अब बिच करना पड़ेगा, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, अभी नहीं करेंगे तो करो या मरो सिचुएशन हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, डू नाउ. और सेकंड में डिसाइड कि अब करना है, कि अब नहीं करोगे तो बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा. ठीक है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. तो सेकंड क्वाड्रेंट प्रिवेंशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यूर है, ऐसा है. तो इसमें अगर सपोज मैं कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सबऑर्डिनेट्स को भी ट्रेन करना चाहिए, मेरे जो काम है उनको सबको सिखाना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए. तो इन केस आई एम नॉट, सपोज आई एम नॉट हेल्दी या मैं एब्सेंट हूँ, तो मेरी जगह क्या कर सकता है, कोई और वो काम कर सकता है. तो इस तरीके से हमने देखना चाहिए. तो वो सारी चीजें हमने करना चाहिए. तो सेकंड क्वाड्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन. तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें करने की जरूरत नहीं, किसी और को हम दे सकते हैं, कोई और भी कर सकता है, जिससे हमारा टाइम बचेगा. ठीक है ना. तो जैसे अभी कुछ ये सेशन के लिए, जैसे अभी सपोज हम देखते हैं कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे क्या करना है कि कोई मैसेज डालना है, जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल का जो मैसेज है डालना है, तो क्या करूंगा मैं, वो अगर कोई मेरा असिस्टेंट है तो उनको बोल सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं, वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं सारे ग्रुप का, स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं क्लास टाइमिंग. नहीं, आई नीड नॉट टू स्पेंड माई टाइम, नहीं तो मेरा आधा घंटा उसमें वेस्ट हो जाएगा, तो जो कि वो टाइम में यूज कर सकता हूँ. तो दैट इज क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन. एंड लास्ट इज क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट. बहुत सारा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, अननेसेसरी जो मैसेजेस है, अननेसेसरी पोस्ट है, ये सारे जो चीजें है कि जो टाइम वेस्ट करते हैं. कुछ लोग आके फालतू की बातें हमारे साथ करते रहते हैं, फालतू का टाइम, मतलब फालतू में ही कॉल करके फालतू की बातें बहुत देर तक करते रहते हैं. तो वो जो है क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट है. तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, दैट इज लाइक वेस्ट, नॉट इम्पोर्टेंट. वो क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वाड्रेंट है कुछ. तो वो जो है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, वो वाला थर्ड क्वाड्रेंट है. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट, नॉट इज इम्पोर्टेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट को तो हमें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए. एंड व्हिच क्वाड्रेंट इज बेस्ट, सेकंड क्वाड्रेंट इज बेस्ट. तो वी शुड बी इन सेकंड क्वाड्रेंट. So that is goodness, and that will bring us plus time manager, and that is the art of smart work, to be in a second quadrant. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, टाइम वेस्टर आइटम्स बिलोंग्स टू. तो अभी देखिए कि ये जो अलग अलग अभी आपको आइटम दिखाऊंगा, तो आप बताइए इसमें से कौन से मोड को बिलोंग करता है. जो टाइम वेस्टर्स है वो कौन से मोड में आता है. तो पहला, नेवर सेटिंग गोल्स और सेटिंग गोल्स एंड नॉट स्टिकिंग टू देम. तो मुझे बताइए ये कौन से मोड में आता है. अभी देखा हमने, कौन बताएगा, विल टेल दिस. नेवर सेटिंग गोल्स और सेटिंग गोल एंड नॉट स्टिकिंग टू देम. व्हिच मोड इज दिस. प्लानिंग भी नहीं करना और कुछ करना भी नहीं, इट इज इग्नोरेंस. ठीक है, तमोगुण, इट इज इग्नोरेंस. नेक्स्ट इज मूविंग अराउंड एंड सोशलाइजिंग टू मच टू फील सिक्योरिटी. तो बस इधर उधर घूमते रहना, लोगों से कनेक्ट करना, बट क्या करना, कुछ काम नहीं करना. ठीक है, तो वो जो है सिक्योरिटी फील करने के लिए, दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो किसी को लगेगा वो मोड ऑफ पैशन है, बट वो इग्नोरेंस, क्योंकि इग्नोरेंस का एक सिम्टम ये भी होता है कि दे फील इनसिक्योर. तो वो जो क्या हो गया, मोड ऑफ इग्नोरेंस हो गया. फिर नेक्स्ट देखिए, लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, गेटिंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय
ट्राइवियल थिंग्स। तो डिस्ट्रैक्ट होना एक इसका है सिम्टम है मोड ऑफ पैशन का। फिर नेक्स्ट देखिए, डूइंग मोर देन वन थिंग एट अ टाइम एंड एक्सेप्टिंग अनरियलिस्टिक डेडलाइन। तो बहुत सारा ये भी करूंगा वो भी करूंगा और मतलब डेडलाइंस अनरियलिस्टिक बहुत सारी चीजें करके लेके रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको करने के लिए फिर फॉर्मिंग एट माउंट, सो दैट इज सिम्टम ऑफ पैशन। ठीक है, नेक्स्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग टू गेन क्रेडिट एंड पॉपुलैरिटी। क्रेडिट एंड पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये इसमें भी ये भी क्लब में पार्टिसिपेट करना, उसमें भी करना, इसमें भी करना, ये भी करना, और टाइम ही नहीं बच रहा है खुद के लिए। सो दैट इज लाइक वी कैन से दैट दैट इज आल्सो सिम्टम ऑफ पैशन। The next is indecisive and postponing decisions. That is mode of ignorance. फिर thinking no one else can manage my work if I am absent. अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ बस अकेला। तो क्या हो गया, पैशन, उससे इंडिविजुअल प्लेयर है। Feeling difficulty to work with highly accomplished and smart leaders. That is also mode of passion. कि अरे ये तो मेरे से ज्यादा कॉम्पिटेंट है, मेरा क्या होगा, ये तो मेरे से ज्यादा पॉपुलर होगा, तो दैट इज सेंस ऑफ भी है, मोड ऑफ इग्नोरेंस भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, वो पॉइंट को और पैशन दोनों भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरगेटिंग थिंग्स और बैडली ऑर्गेनाइज अनक्लीन डेस्क, दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। फिर लुकिंग फॉर टू मच ऑफ परफेक्शन इन जॉब लीडिंग टू द माइक्रो मैनेजमेंट, तो वो क्या हो गया, मोड ऑफ पैशन। तो इस तरीके से हमने देखा अलग अलग टाइम वेस्टर कैसे अलग अलग मोड में आते। अभी हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है कि मैं कौन से मोड में हूँ, इग्नोरेंस में हूँ, पैशन में हूँ कि गुडनेस में हूँ, और मुझे एक्चुअली कौन से मोड में रहना चाहिए, मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, फर्स्ट में हूँ, सेकंड में हूँ, थर्ड में हूँ कि फोर्थ में हूँ, मैं कौन सा प्लस टाइम मैनेजर हूँ कि निगेटिव माइनस टाइम मैनेजर हूँ। तो वो हमें सोचने का समय है अभी, और सोच के हमें प्लस टाइम मैनेजर बनना है और सेकंड क्वाड्रेंट में आना है और गुडनेस पर्सनालिटी में, गुडनेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी बनना है। तो दैट विल हेल्प अस। तो पर्सनल लाइफ में हमें रिलेशनशिप क्या चाहिए, हमें पर्सनल लाइफ में वी लुक फॉर रिलेशनशिप एंड जॉय। ठीक है, रिलेशनशिप विल गिव अस जॉय। हम प्रोफेशनल लाइफ में हम इफिशिएंट होंगे, रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, तो दैट विल गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अभी नेक्स्ट, स्मार्ट वर्कर्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन विद पीपल। वो कम्युनिकेशन इंप्रूव करते क्योंकि लोगों में इन्वेस्ट करते, तो जो लोग क्या करेंगे उनको हेल्प करेंगे, दे विल हैव बेटर रिलेशनशिप, बेटर facilities and amenities, and that's why they will able to perform well. फिर they will prepare well before anything they want to do anything. Suppose मुझे क्लास लेना तो I'll prepare well. नेक्स्ट, बेटर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। कोई चीज करना है तो उसको पहले से प्लान करके, विजुअलाइज करके, प्रॉपरली चीजें ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। टेकिंग बेटर केयर ऑफ सेल्फ, खुद का अच्छे से केयर लेना, मतलब वो क्या करेंगे, योगा करेंगे अच्छे से, फिर प्रॉपर रेस्ट लेंगे, एंड दे विल लाइक प्रिपेयर वेल। देन फिर सीजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं आती तो उसको क्या करेंगे, तुरंत ग्रैब कर लेंगे, उसके ऊपर अलर्ट रहेंगे उसके बारे में। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, खुद के ट्रेनिंग के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए कुछ टाइम निकाल के रखेंगे। फिर वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रॉब्लम आने से पहले उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें टाइम इन्वेस्ट करके उस प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे या उसको कम कर देंगे, दैट इज लाइक। एंड दे विल एम्पावर अदर पीपल, तो in case of their absence, other people can take over the things and they can run the show will not stop. So that is the thing. फिर नेक्स्ट देखिए, गुडनेस प्लेटफॉर्म पॉजिटिव। तो व्हाई ऑल द बिलियनियर्स wakes up at 4 AM, सारे बिलियनियर 4 बजे की उठते, तो उसके बारे में बहुत अच्छा Are वीडियो है। successful people वो हम waking up at देखेंगे। 4 a.m. and not a different hour? What is the secret behind it? Well, they know how their brain works, and they take advantage of their brainwave states and brain chemistry. The brain produces electrical patterns, often referred to as waves. When you're first awake, your brain operates at around 10.5 waves per second. The range from 8 to 13 hertz or cycles per second is the alpha stage. It's been called the gateway to the subconscious mind. But when you wake up this early, you are between theta and alpha. The mind is capable of deep and profound learning, being fully aware and focused with an effortlessly calm mind.
In other words, you don't have to work as hard. You are not thinking. You just relax into the moment. Another important fact known by all successful people is when you wake up, your subconscious mind is most impressionable and soaks up information like a sponge. Whatever you hear, see, or are exposed to in the first 20 minutes will affect you and set the tone for the rest of your day. This is why they meditate, listen to affirmations, and not checking their social media and emails so early. They choose consciously their tone of the day, being focused and positive and not being distracted. They choose to go to bed early and use the premature hours of each day in their own advantage. They make up a routine of waking up before the sun starts to shine and go to sleep after the sun goes down. Why do they go to bed so early? Between 10 p.m. and 2 a.m. is where you can get the most from regenerative and deep sleep. After 2 a.m., sleep lacks the quality that you need as it becomes more superficial, chronically depriving your body of the regenerative sleep which you can enjoy between 10 p.m. and 2 a.m. makes you wake up in the morning even more tired than when you went to bed. If you are among those that usually fall asleep well past 10 p.m., you should consider changing the situation. Set up a goal to go to bed earlier by 15 to 30 minutes each week until you hit 10 p.m. bedtime goal. Early risers like Apple CEO Tim Cook, Oprah Winfrey, and Dwayne Johnson choose to greet the day at the crack of dawn because that's where motivation is created, and they don't need to ask for it. That silence of early morning hours is what helps them use their potential to the maximum. Successful people choose to use every minute available in a day because their life's purpose is higher than any other short-term pleasure or comfortable bed mattress. They instilled this habit of waking up early in their DNA because they understand how a strong and consistent routine can support a successful life. The human brain can work at its maximum potential when it doesn't have to multitask. The quality level of work is highly dependent on the level of focus. When there are no distractions and noises to disturb concentration, the brain has a great capacity to focus on certain tasks and thus generate a balanced rate between quality and work. Successful people are aware of this, and they use their alone time in the early morning to take full advantage of their brain's functioning capacity. High achievers understand that premature hours of the day allow them to make better decisions as their energy levels are at their peak. Those who live a grand life understand that early morning willpower helps them to achieve high levels of discipline. A disciplined morning guides them towards a whole day of discipline, and this is exactly what supports their successful life. As soon as the alarm goes off, you're facing a bump in the road, and it's up to you to get over it or not. It's up to you to decide whether you use your time in your advantage or not. When everybody else is still dreaming and sleeping in their comfortable beds, it's your time to shine. It's your time to get out of your comfortable zone and have that well-deserved breakthrough. The early morning hours are moments where you can be ahead of things without being distracted. It's a time where you can focus and pay attention to what really matters. So this was like very amazing video. Why billionaires wake up at 4 a.m. Because that time we are in the like alpha waves in our brains are very active, and we know that they are in the goodness zone that brings us between 8 to 13 waves per second. Like we can know that. That is like very important thing. Let's move ahead. So now I am going to conclude this session. So देखिए upcoming 8 sessions will cover these 5 topics, 5 years formula, very important. जो क्या करेगा हमें मोड ऑफ गुडनेस में लेके आएगा, पॉजिटिव थॉट्स कल्टीवेट करने में हेल्प करेगा, एंड अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ विल बी सक्सेसफुल, दैट विल बी achieved, accomplished, and will become achieve unlimited, unending, everlasting happiness. So let's have the look of this 5 years formula, and just don't leave the session. अब फीडबैक फॉर्म चैट में उसका लिंक डाला जाएगा, तो प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म. That link is posted in the chat. Please check that and please fill that form. Just have, so first yes is soul. Who am I? That is the first yes which we are going to see. जैसे हमने देखा कि ड्राइवर जैसे ड्राइव करता है कार को, इस बॉडी को सोल ड्राइव करता है. तो सोल इज अ ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी, इम्पेरिशेबल सोल. तो सोल हम कौन है एक्चुअली, हु एम आई, ये जानने से क्या कर पाएंगे हम, इस अपने माइंड, सेंसेस, हैबिट्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, जिससे हम हैप्पी होंगे, एक्चुअल ट्रू हैप्पीनेस हम अचीव कर पाएंगे. तो दैट इज फर्स्ट यस.
and then second yes is supreme. So जैसे कि मैं इस बॉडी का कंट्रोलर हूँ, इस बॉडी जो मशीन है उसका ड्राइवर मैं हूँ, तो ये जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, ये जो कॉस्मिक मशीन है, ये जो क्रिएशन है, हु इज द ड्राइवर फॉर दिस कॉस्मिक टू सी, क्योंकि उसको भी कुछ ऑपरेटर कोई होना चाहिए, तो दैट ऑपरेटर इज सुप्रीम. So because Einstein also say that there must be some intelligent designer behind this mysterious universe. So that is second yes. Then third yes is that we can say scriptures. तो जैसे हम देखते हैं कि जो होली बाइबल है, भगवत गीता है, कुरान है, ये सारे जो बुक्स है, लॉ कोड से, they are like manual for human being. They are full of wisdom and they will guide us what to do, what not to do. So that is the scripture. That is third yes. And देखिए books, and somebody will say that they are mythology, but they are not a mythology. They are very practical, and like they are very full of wisdom. So now there are so many modern very famous books which are based on the scripture. Just the 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey, very famous book, bestseller book. Spiritual Roots of Human Relations, The Organized Mind. So these are like some of the very important books and famous books which are based on the spiritual literatures. And third is scripture. Fourth one is solutions. So अभी हमने देखा कि there are so many sufferings, so many problems in our life, and we want to put full stop to our sufferings and problems. So we'll understand how to put full stop to all kinds of suffering. सारे जो दुख है, सारे सफरिंग को कैसे full stop लगाना है, इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वैदिक लिटरेचर में, विजडम में हमें दिया है, तो वो हम देखेंगे इसके बारे में. एंड हमें पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस. व्हाट एक्शंस विल प्रोड्यूस which type of reaction and which action we should perform, that we'll learn in this fourth yes. And last 5 years is sound vibration. तो देखिए we know that sound is very powerful. एरोप्लेन अगर जा रहा होगा किसी बिल्डिंग के पास से तो विंडो ग्लासेस भी ब्रेक होते हैं. And George Harrison says that spiritual music is a way to go inside to your own temple and calm down your mind. That is very very powerful. तो spiritual sound vibration के बारे में, chant and meditation के बारे में हम इस 5 years के बाद इसमें सीखने वाले हैं. तो देखिए इसको रिसर्च भी किया गया है. साउंड वाइब्रेशन, साउंड का जो इफेक्ट है स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन का, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर है. उसके बारे में हम इसके 5 years में स्टडी करेंगे. सो प्लीज डोंट मिस दिस सेशन, डोंट मिस दिस कोर्स. प्लीज attend all the sessions, take benefit of it, and surely you will ultimately gain the knowledge to achieve the unending everlasting happiness. So just I will summarize the session. तो देखिए बस हमने देखा कि सर्च फॉर हैप्पीनेस, एंड उसमें हमने देखा कि इम्प्रूव, हम सोचते कि अगर ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग, इसकी फैसिलिटीज इंप्रूव की जाए तो हैप्पीनेस मिलेगा. बट हम देखते हैं कि ये सारे फैसिलिटीज होने के बावजूद भी हैप्पीनेस नहीं मिला. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ह्यूमन वर्सेस एनिमल्स. तो उसके अंदर हमने देखा कि 4 कॉमन एक्टिविटीज है, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग. तो एनिमल आल्सो हैव इंटेलिजेंस एंड रैशनल पावर. महाभारत का श्लोक भी हमने देखा. तो एनिमल्स जो है हम देखते कि वो हायर जो लाइफ है, लाइफ के हायर जो ट्रूथ्स है, जो विजडम है, उसके बारे में इंक्वायर नहीं कर सकते, बट वी कैन डू दैट. दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर सुपीरियर टू एनिमल्स. नेक्स्ट वी हैव सीन डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज. तो डिवाइन क्वालिटीज आर इनेट क्वालिटीज एंड डेमोनिक क्वालिटीज आर एक्वायर्ड क्वालिटीज. कट कर, तो एक्वायर्ड क्वालिटीज, तो हमें एक्वायर्ड क्वालिटीज को रिमूव करेगा तो इनेट क्वालिटीज बच जाएगी. सो देन विल एबल टू थिंक पॉजिटिवली. नेक्स्ट हमने देखा आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क. तो हमने देखा कि उसके अंदर, उसमें पहला टिप 1 देखा, राइट द बुक ऑफ योर लाइफ. तो उसके अंदर हमने चीजें जो है क्या लिखना है, अच्छी चीजें लिखनी है रोज. उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर ऐड करना है, पॉजिटिव क्वालिटीज ऐड करना है. चैरियट ऑफ द बॉडी देखा हमने, इनेट वर्सेस एक्वायर्ड क्वालिटीज देखा. फिर हमने पर्सनालिटी टाइप देखा. तो उसके अंदर गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस. तो हमने बोला गुडनेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी विल बी द हेल्प. राजा ऋषि का एग्जांपल देखा, तो अवर पैशन शुड बी गाइडेड बाय द गुडनेस. नेक्स्ट हमने देखा कि बूस्टिंग टू द टाइप ऑफ गुडनेस. तो उसके अंदर ABCD फॉर्मूला देखा, एसोसिएटिंग विद द सेंटली पर्सन, बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम. नेक्स्ट चैंटिंग एंड मेडिटेशन, डाइट, सैंक्टिफाइड डाइट, karma free diet, and environment, good environment, favorable environment, and avoiding unfavorable environment.
And lastly, we have seen tip 3, I am a plus manager, plus time manager or minus time manager. उसके अंदर हमने देखा we have to plan also, we have to do also, and we have to interact also properly. And time management matrix देखा हमने, उसके अंदर we should be in second quadrant, जो कि है important but not urgent. Then हमने time wasters देखा, तो time waster जो है उसको हमने remove करना है, पूरा completely avoid करना है. And goodness जो देखा हमने उसके अंदर, the positive thoughts will bring us the goodness. So this is the secret of happiness. We have seen this first session. So this is the team of this mantra for live course design Radhesham Das and all. So thank you very much all for joining today's session. So we'll stop here.